Okay, in the last chapter, we have studied the introduction of management and motivation. We have studied different types of motivation and what drives motivation, and different types of two theories we have studied, that is content based theories and practical based theories, that is contemporary theories. So today we have seen what theories fall under which category. So today we are studying one of the theories named Maslow's hierarchy of needs. Okay. ठीक है, तो अब्राहम मास्लो थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1943 पेपर. तो व्हाट इज मास्लोज हायरार्की ऑफ थ्योरी? देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ मास्लोज. तो मास्लोज ने एक थ्योरी पब्लिश की थी, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इन 1943. और वो थ्योरी में उसने क्या बोला था कि ह्यूमन का जो मोटिवेशन है वो 5 स्टेजेस में लिंक्ड है. ठीक है, एंड दैट्स 5 स्टेजेस आर कॉल्ड एज नीड्स. दैट इज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. तो वाई आर हायरार्की वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज लोअर लेवल टू हायर लेवल नीड्स. तो व्हाट डज मास्लोज हैज सेड इज कि ह्यूमन की जब तक लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक वो हायर लेवल नीड्स की तरफ मूव नहीं कर सकता. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन. दैट मीन्स कि जब तक लोअर नीड सेटिस्फाई नहीं होती हम हायर नीड पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते. तो व्हाट काइंड ऑफ नीड्स दैट मास्लो टॉक्स अबाउट इज, first is physiological needs. So as we know, physiological needs is food, water, warmth, rest, home, etc. तो what दस मास्लोज मीन्स कि जब तक आपकी लोअर लेवल नीड्स, मतलब जब तक आपके पास खाना नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, तब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते कुछ आगे का अचीव करने के लिए या आगे के किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए. दीज आर व्हाट कॉल्ड एज बेसिक नीड और फिजियोलॉजिकल नीड. दैट इज़ बॉडीली नीड्स, दैट इज़ फूड, हंगर, रेस्ट, everything. Because if you are very hungry and very thirsty and very tired, you can't focus on what is need to be done, right? So this is one of the basic example. So we are studying of physiological needs. So we are first need is physiological needs. And Maslow state कि जब तक physiological needs पूरे नहीं होती तब तक हम higher need पे move नहीं कर सकते, which is what safety needs. So first we are going will be studying point wise. The first is physiological needs. So as we say, there are most basic biological requirement. So we say as it is most basic biological requirement. And what are they? Air, water, food, shelter, sleep, clothing, reproduction, that is sex and everything. These are all Maslow has given this in basic biological need that a human need to fulfill to get toward higher needs. So in workplace this translate to fundamental compensation required to survive. So basically अगर आपको एक कंपनी में अगर आप जॉब करते हो और एक फेडरल मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, जैसे ये एग्जांपल में है कॉस्टको. कॉस्टको इज़ अ वेरी रिनाउंड कंपनी एंड दे हैव स्टार्टेड द फेडरल मिनिमम वेज. मतलब वहाँ पे मिनिमम वेज सब एम्प्लॉयज़ को मिलता है एंड दे इंश्योर्स हाई पेइंग टू एवरीबडी टू अफोर्ड फूड, हाउसिंग एंड यूटिलिटीज़. मीन्स दे पे वेरी वेल फॉर एम्प्लॉयज़ टू अफोर्ड हाउसिंग एंड फूड. So they do not have to struggle to pay rent, or they do not have to work 2 times for 2 jobs at different shifts. The physiological needs are met and the employee will be primarily motivated because he doesn't need no more money to survive the physiological needs. So he will be more focused and working towards company visions and creativity. तो फिजियोलॉजिकली मास्लो सेज कि जब तक साइकोलॉजिकल नीड मूव नहीं होगी वो पिरामिड के आगे के स्टेजेस पे नहीं पहुंच सकता. अब अगर आप स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल देखें तो अगर आपका एक इमेजिन करो एक सरप्राइज मैथ टेस्ट है बट यू हैव स्किप्ड योर ब्रेकफास्ट, या हेड इज हर्टिंग, या स्टमक इज ग्रॉलिंग, विल यू बी एबल टू फोकस ऑन एल्जेब्रा एंड मैथमेटिक्स? नो, you will be thinking about sandwiches, dosas and everything. So your basic survival need, that is food, has not been completed. That's why your attention is rotating here. The attention span has reduced and you cannot focus on the maths lecture or maths that has been given. So this has being the physiological needs. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है तो मास्लोज बोलता है कि देन कम्स द सेफ्टी नीड्स. देन व्हाट इज़ द सेफ्टी? ठीक है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट फिजियोलॉजिकली फुलफिल हो गई है, बट व्हाट अबाउट सेफ्टी? कि कल चल के आपको जॉब से निकाल दिया तो आप क्या करेंगे, क्या खाएंगे? ठीक है, रिटायरमेंट के बाद आपको के पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आपको पेंशन नहीं मिलती है तो व्हाट इज़ द रिटायरमेंट प्लान? तो देन कम्स द सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स में क्या आ जाता है कि आपका जॉब स्टेबल है या नहीं है, आपके पास कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया है या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंसली कवर्ड हो ताकि आपको कोई बीमारी का टेंशन ना रहे, आपको सेफ़र फील हो और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो एंड आपका रिटायरमेंट प्लान रेडी हो. तो दिस ऑल कम्स अंडर सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स में और बहुत सी चीज़ें आ जाती है कि जैसे आप सेफ़र एनवायरनमेंट में रहते हो, आपका एनवायरनमेंट सेफ फील हो रहा हो, एवरीथिंग. तो वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट
the safety and security needs becomes paramount. That is it of secondary, most important thing, it becomes paramount after physiological need are met. अगर physiological need ही पूरी नहीं होगी तो आप खाने रहने, आप ये सब सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे ही नहीं. आप पहले क्या सोचेंगे कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे एक अच्छा शेल्टर मिल जाए. तो safety needs come secondary. This job include what is in the workplace, what is safety needs, that is job security that I have talked about, that is contract job security, एक safe working environment, health benefits that is insurance and everything, and a predictable routine and consistent routine. मीन्स आपको ज़्यादा ओवर टाइम ना करना पड़ रहा हो, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड ना हो, आपके पास ज़्यादा आपको ज़्यादा टेंशन ना हो कि अगर मैंने काम नहीं किया तो कल मुझे निकाला जाएगा. दीज आर ऑल सेफ्टी नीड्स. तो वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ IBM. दिस इज एन कॉर्पोरेट एग्जाम्पल. IBM is a good reputed company. It has a long history in corporate social policies, ठीक है, which provides excellent job security. They have robust health insurance for every employee working under them. They have good retirement plan and create structured career path. They have powerful sense of safety for the employee. They know कि IBM में काम करने वाला एम्प्लॉई जो है वो सिक्योर फील कर रहा है just because of the company's policy, ठीक है. The security frees them to focus on the work. If the security is given to the employee, if employee know कि मेरा सिक्योरिटी है तो वो काम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा. एंड दे विल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी वर्क फॉर द कंपनी. सो दिस आर व्हाट द 3 रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अब स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रियल लाइफ स्टूडेंट एग्जाम्पल. इमेजिन दैट यू आर मूविंग टू योर न्यू हाउस. आपके फादर का जॉब एक नई सिटी में शिफ्ट हो गया है, आप एक नई स्कूल में, एक नए घर में, एक नए सोसाइटी में मूव कर रहे हैं. तो आपका इन्वायरमेंट अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आप रिलैक्स नहीं फील कर पा रहे हैं, आप सेफ नहीं फील कर पा रहे हैं. तो अगर जब तक आपके पास सेफ्टी नहीं आएगी आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे. आपका रेगुलर क्लास शेड्यूल, आपका स्टडी शेड्यूल नहीं फिक्स हो पाएगा. दिस इज़ व्हाट सेफ्टी मीन्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल में वही दिया है. इमेजिन योर फैमिली इज मूविंग टू अ न्यू हाउस. You might be stressful and it will be hard to think about school projects because you're worried about the change. आपके लाइफ में एक चेंज आ गया है जो आपको एक सेफर एनवायरनमेंट फील नहीं करा रहा है, ठीक है. तो आप सेफ नहीं फील करेंगे तो आप फिजियोलॉजिकल नीड के आगे पे मूव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि रेगुलर क्लास या फिर सेल्फ स्टीम नीड पे आप मूव नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज़ व्हाट सेफ्टी नीड्स इज़ ऑल अबाउट. तो ये मास्लोस का सेकेंड था पिरामिड में. हमने पिरामिड देखा था, उसमें फर्स्ट नीड थी फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड नीड थी सेफ्टी नीड. ओके, तो आप कैसे याद करोगे ये मैं बता देती हूँ. मास्लोज में एस्लोज है. तो दिस इज विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज सेफ्टी नीड्स एंड दिस इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड. ओके, तो ये 3 नीड्स तो हमको मास्लोज के ASL से ही याद हो गई, बाकी की 2 नीड्स हमको याद करनी पड़ेगी, ठीक है. तो थर्ड नीड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड. तो एज पर द नेम इट सजेस्ट कि लव एंड बिलोंगिंगनेस एक इंसान को एक हेल्दी स्टेबिलिटी लाइफ में, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड के बाद फ्रेंड्स, इंटीमेसी एंड लव की फीलिंग भी रहनी चाहिए. उनके रिलेशनशिप हेल्दी रहने चाहिए. अगर उनके रिलेशनशिप वर्क प्लेस में, पर्सनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में हेल्दी नहीं रहेंगे और उनका कनेक्शन नहीं रहेगा तो दे विल बी फीलिंग डीमोटिवेटेड ऑल द टाइम. दे विल बी फीलिंग एग्जॉस्टेड. दे कुडेंट बी शेयरिंग देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन पर्सनल लेवल विद देयर कलीग्स और देयर पार्टनर. तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, लव एंड बिलोंगिंगनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो मास्लोज हायरार्की बोलता है कि सेफ्टी नीड्स के बाद हम थर्ड नीड पे मूव करते हैं, दैट इज़ फ्रेंडशिप, इंटीमेसी विद योर पार्टनर, फैमिली. इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन विद योर कलीग्स, दिस ऑल इम्पैक्ट्स योर मोटिवेशन, ठीक है. तो इन वर्क प्लेस अगर कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है, टीम वर्क अच्छा नहीं है, सब आपको नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, आप सेफ नहीं फील कर पा रहे हैं, कनेक्शन अच्छे नहीं है, मैनेजर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, आप मोटिवेट नहीं रहेंगे काम करने के लिए. तो ये वर्क प्लेस इम्प्लीकेशंस है. अब एक कॉर्पोरेट लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं. यू नो वेरी फेमस कंपनी गूगल, दे एनकरेजेस ओपन ऑफिसेस, दे एनकरेजेस स्पोर्ट्स, गेम्स, टीम बिल्डिंग इवेंट्स भी होते हैं, उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, LGBT कम्युनिटी को वेलकम किया जाता है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, आपके ओपिनियंस को मैटर किया जाता है. तो दिस कोलैबोरेशन एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड कनेक्शंस मोटिवेट यू टू वर्क बियॉन्ड योर कैपेसिटी, ठीक है. एंड एम्प्लॉयज़ may be feeling like a part of family. You will be very motivated to go to work every morning. So therefore love and belongingness need is also very important for you to get motivated to a higher level. यहाँ पे इमेजेस है कुछ मेंशन करते हुए कि कॉफ़ी टेबल पे आप डिस्कशन कर रहे हैं विथ हैप्पी एनवायरनमेंट, मीन्स कनेक्शन आपके अच्छे हैं आपके कलीग्स के साथ. टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हो रही है जिसमें आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं और आइडियाज शेयर कर पा रहे हैं. ओके
अब स्टूडेंट लाइफ एग्जाम्पल में इसका देख लेते हैं कि आपने, अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था, आप न्यू हो स्कूल में, आपने एक नई स्कूल शॉर्ट की है, आप एक स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर रहे हो या बैंड ज्वाइन कर रहे हो, और आपके फ्रेंड्स आपको ग्रुप में खाने के लिए नहीं बुला रहे, आप अकेले खा रहे हो, आपको लोनली और लेफ्ट आउट फील किया करवाया जा रहा है, तो आप अपने काम में या फिर चीज़ों में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर करवाएंगे। अगर आपको टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है बट आपका ध्यान नहीं रहेगा उस चीज़ में, बिकॉज आपका हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हुआ है अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने पीयर्स के साथ। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल. This is all about social life at school. If you are joining a sports team or a club or a band, you have solid group of friends to eat lunch with. अगर आप अकेले बैठ के खा रहे हो, आप सैड और मायूस हो, तो आप कैसे बाकी की चीज़ों पे फोकस करोगे? इफ़ यू फील लोनली और लेफ्ट आउट, इट रियली डिफिकल्ट टू फाइंड कॉन्फिडेंट और प्राउड ऑफ योर वर्क. देन वो स्टूडेंट का इनर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, उसका सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाता है. तो मास्लोज हायरार्की में लव एंड कनेक्शन को थर्ड स्टेज दिया हुआ है. अभी हमें पिरामिड के अगर हम तीनों स्टेजेस को फुलफिल कर लिए, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स एंड एज वेल एज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, तो अभी हम फोर्थ नीड पे आते हैं, दैट इज सेल्फ इस्टीम नीड्स. तो व्हाट इज सेल्फ इस्टीम नीड्स? एज वी नो, इस्टीम का मतलब होता है कि रिकग्निशन मिलना, रिस्पेक्ट मिलना लोगों से, फ्रीडम चाहिए आपको अपने चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए. तो व्हाट इज़ रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट? जब आपको फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई, आपको खाने का टेंशन नहीं है, आपको सेफ्टी का टेंशन नहीं है, आपके पास रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, देन कम्स कि मुझे काम करना है अकम्पलिशमेंट के लिए. मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड चाहिए, या मुझे मेरा काम लोगों मुझे प्रेज़ करना चाहिए. प्रेजिंग इज़ वन ऑफ द सेल्फ इस्टीम. मुझे रिकग्निशन मिलना चाहिए मेरे काम के लिए, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे लोगों से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. दिस कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज आफ्टर द 3 stages are fulfilled according to Maslow. तो सेल्फ इस्टीम, रिकग्निशन, फ्रीडम, these are all what esteem needs according to Maslow's. तो अभी हम देखेंगे कि सेल्सफोर्स, यू नो सेल्सफोर्स इज़ अ वेरी रेप्यूटेटेड हवाईन कंपनी, दैट इज़ ओहाना कल्चर. तो वो क्या बोलते हैं कि हम मैनेजर्स को और पीयर्स को अवार्ड्स और बोनसेस देंगे. इफ़ दे परफॉर्म वेरी वेल, वी विल गिव देम अवार्ड्स एंड बोनसेस. और उनके प्रमोशन के लिए उनको क्लियर पाथ डिफाइन हो जाएगा, उनको पता रहेगा कि नहीं हमें प्रमोशन मिलने वाला है, हमें अब हमारी एक्नॉलेजमेंट मिली है हमारी अचीवमेंट्स को लेके. तो दिस विल एम्पावर देम टू वर्क टूवर्ड्स देयर ग्रोथ. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि एस्टीम नीड्स कैसे फुलफिल की जाती है एक कॉर्पोरेट वर्क स्ट्रक्चर में. इफ़ ही टॉक्स अबाउट स्टूडेंट, कि अगर हम बच्चे को देखें, उसको एक बहुत पेपर में बहुत अच्छे ग्रेड मिल रहा है, तो ये उसका सेल्फ इस्टीम बूस्ट करेगा. उसको स्कूल में रिकॉग्नाइज मिलेगा कि इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, ही विल गेट एन अवार्ड फॉर दैट, फॉर अ ग्रेट स्टूडेंट इन क्लास बी और क्लास सी. सो दिस आर व्हाट द एग्जाम्पल्स ऑफ फीलिंग वैल्यूड एंड केपेबल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स को वैल्यू और केपेबल आप कैसे फील करा जा सकते हैं? गुड ग्रेड्स, या स्पोर्ट्स में फर्स्ट आना, ठीक है, या पेरेंट्स का बोलना दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, या टीचर्स का रिकग्नाइज करना कि दिस स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल इन वेरी हॉकी टीम, ही इज़ वेरी गुड एट हॉकी. सो दिस इज़ व्हाट मेक्स यू फील वैल्यूड एंड केपेबल. तो दिस आर व्हाट ऑल इस्टीम नीड्स. तो अकॉर्डिंग टू मास्लोज, हमारी जो इस्टीम नीड्स है ये फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है आफ्टर फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड लव एंड कनेक्शन नीड्स आर फील. बिकॉज सबको पसंद होता है कि सब उनकी तारीफ़ करें, उनको उनके ड्यू रिस्पेक्ट मिले, उनको रिकग्निशन मिले. So this is what the fourth needs talk about, that is esteem needs. So as we move forwards in the pyramid, that is the fifth stage we are talking about that is self actualization needs. नाउ हमने देखा कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी फुलफिल हो चुकी है. आपको खाने पीने के लिए आपके पास सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आपके पास हेल्दी रिलेशनशिप है, आपको एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिला हुआ है, अच्छा स्टूडेंट इन्वायरमेंट मिला है, आप ग्रोथ भी कर रहे हैं, आपको रिकग्निशन भी मिल रही है उस चीज़ की. तो अभी आप क्या कर रहे हो? आपके पास सब है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास हेल्दी कनेक्शन है. तो यहाँ पे लोग पर्सनल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करते हैं. मतलब उनके लिए अभी मनी जो फैक्टर है वो ग्रोइंग फैक्टर नहीं रहता. अब उनको ये मोटिवेशन हायरार्की में चैलेंजिंग वर्क्स चाहिए रहते हैं, उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना पसंद होता है, उनको पर्सनल पैशन. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप 6-6, 7-7 घंटा सिर्फ पेंटिंग कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आर सीकिंग फॉर पर्सनल ग्रोथ. अभी आपको पता है आपकी बेसिक नीड फुलफिल हो चुकी है, आप अपना फुल पोटेंशियल अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्क प्लेस में देखें तो अगर आपकी सब नीड फुलफिल हो चुकी है तो आप चाहेंगे कि आपको मोटिवेट होने के लिए कोई चैलेंजिंग वर्क मिले या अपॉर्चुनिटी मिले, या आप कुछ चीज़ इनोवेट कर पाए या क्रिएट कर पाए जिसको आप खुद का बोल सकें, या आपका पर्सनल ग्रोथ हो सके. सॉरी. तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड.
अब सेम एग्जाम्पल अपन ले लेंगे टेस्ला और स्पेस एक्स का। तो यू नो कि दे अनलिश क्रिएटिविटी एट मास्टर्स टेस्लास एंड स्पेस एक्स। वहाँ के जो इंजीनियर्स है वो फ्यूचर रॉकेट्स प्लान्स सस्टेनेबल एनर्जीज पे काम करते हैं। तो वहाँ का जो वर्क एनवायरमेंट है दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। एज ऑब्वियसली एग्जाम्पल टेस्ला हैव गिवन all the safety needs, physiological needs, love and connection need to you. So now you're focusing more on transition to sustainable energy, multiplanetary and very immense कॉम्प्लेक्स थियोरीज दैट टेस्ला एंड स्पेस एक्स हैज़ बिन वर्किंग ऑन। तो ये आपको आपकी मास्टरी में, आपको मास्टरी अचीव करने के लिए, आपको इनोवेट होने के लिए और आपकी एबिलिटीज़ को और एक हायर एंड पे ले जाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बट ये तभी पॉसिबल होगा इफ़ इमेजिन कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि भूखे पेट खाली पेट विदाउट सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर आप बैठ के पेंटिंग करो, आपका पैशन है अगर पेंटिंग करना, 24 आवर्स पेंटिंग करो और उसका आपको रिनमरेशन ना मिले, तो इट्स नॉट मोटिवेटिंग। तो इसलिए मास्लोस के अकॉर्डिंगली पिरामिड को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ फ्रॉम लोअर लेवल नीड्स टू हायर नीड। मीन्स अ पर्सन हैज़ टू फुलफिल हिज लोअर लेवल नीड फर्स्ट टू गेट मोटिवेटेड टू एंड मूव फॉरवर्ड टू हायर लेवल नीड। इसको हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन progression. Means unless and until your lower level needs is not satisfied, you cannot progress in pyramids to higher level needs. This is what satisfaction progression means. अभी स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं एक्चुअलाइजेशन के लिए, जिसमें हमने बोला है कि स्टूडेंट्स को अपग्रेड मैटर नहीं करते। मीन्स वो स्टीम नीड से बहुत ऊपर आ चुका है पिरामिड के। मीन्स उसको अभी रोबोट बनाना है, साइंस के एग्जीबिशन में वर्क करना है, उसको स्कूल के बाद भी 4 घंटे बैठ के टीचर्स के साथ न्यू चीज़ें सीखनी है। तो आर्टिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिस्ट वुड लव टू स्पेंड टाइम इन पेंटिंग एंड जॉय ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्क। वैसे एक राइटर को अगर आप बोल रहे हैं कि नॉवल लिखिए, अगर उसकी बाकी की नीड्स फुलफिल नहीं होगी, ही कांट राइट अ गुड नॉवल। तो अगर आपको नॉवल के बाहर स्टूडेंट्स अगर क्लास में सब चीज़ें फुलफिल करने के बाद अगर नॉवल लिखना चाहता है या पेंटिंग करना चाहता है, दिस इज़ व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मीन्स विथ इज हायर लेवल नीड्स, दैट इज ग्रोथ नीड्स। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज ग्रोथ नीड। अच्छा, अभी हमने पिरामिड देखा था, ठीक है? तो पिरामिड में हमने 5 नीड्स देखी थी। दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैट वॉज फूड, वाटर एंड सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, and then we sought belongingness, love needs, and then we have seen esteem needs and self actualization need. तो अभी आप इसमें देखिए कि ये जो 4 नीड्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, this is what called as deficiency needs, that is D needs. What is deficiency need? You are deficient in physiological needs, safety needs, love and belonging needs, and esteem needs. It is because it drives through deficiency of these things. So it is called as D needs. Whereas self actualization is known as B needs, that is growth needs. This is called as growth needs. Here you focus on your self growth and your growth of personality on spiritual and individual level. So these 4 things are called as deficiency needs, and this thing is called as growth needs or B needs. ये हम देखेंगे एक्सटेंडेड थ्योरी में डिटेल में। नाउ फॉर नाउ इट इज़ ओके टू यू अंडरस्टैंड दिस वे। अभी हमने मास्लोस की थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है? अब इसके बहुत से लोगों ने इसकी क्रिटिसिज्म भी दी है। वी विल सी द क्रिटिसिज्म ऑफ मास्लोस थ्योरी वन बाय वन। तो ओके, तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल और इंटीमेटिव थ्योरी है, बट मास्लोस को हेविली क्रिटिसाइज किया है बोथ कंसेप्चुअल ग्राउंड पे भी और मेथोलॉजिकल ग्राउंड पे भी। तो फर्स्ट हम क्रिटिसिज्म देखेंगे मास्लोस का, वो है सेक्स एज प्योर फिजियोलॉजिकल नीड। हमने देखा कि मास्लोस के हायरार्की थ्योरी में फिजियोलॉजिकल नीड में उसने बायोलॉजिकल नीड दैट इज सेक्स को भी एक प्लेसमेंट दी है। बट अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ये एक लव एंड बिलोंगिंगनेस दैट इज टायर 3 दैट वी हैव स्टडीड, दैट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड में भी हो सकता है, या सेल्फ एस्टीम या वैलिडेशन दैट इज 4th नीड या रिकग्निशन नीड में भी हो सकता है। इसको आप फिजियोलॉजिकल नीड में प्लेस करके, हंगर और थर्स्ट के साथ प्लेस करके इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बिकॉज ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता। आपका फिजियोलॉजिकल नीड अगर फुलफिल हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप आपका फिजिकल नीड इसमें प्लेस करके उसको भी फुलफिल करें, तभी आप सेकेंड पिरामिड पे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर फिजियोलॉजिकल नीड पूरी ना भी हो रही हो, तो भी मैं सेफ्टी नीड्स और लव एंड कनेक्शन नीड पे ज़्यादा फोकस करके सेल्फ एस्टीम और ग्रोथ नीड पे फोकस करूँगी। दैट कंबाइंस फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। तो दैट्स वाई इट हैज़ बिन हेविली क्रिटिसाइज कि इन्होंने सेक्स को एज अ प्योर फिजियोलॉजिकल नीड में पुट इन कर दिया। दे शुड हैव पुट दिस नीड इन इंटीमेसी एंड बिलोंगिंग एज वेल एज सेल्फ एस्टीम एंड वैलिडेशन नीड, ठीक है? तो बाय लॉकिंग इट इनटू द बॉटम टायर, अगर ये फिजियोलॉजिकल नीड को बॉटम टायर में अगर हमने लॉक इन कर दिया, तो ये थियोरी क्रिएट्स करती है आर्टिफिशियल सेपरेशन बिटवीन बायोलॉजिकल एक्ट एंड इट्स फिजियोलॉजिकल पर्पस। ये एक बायोलॉजिकल एक्ट है जो फिजियोलॉजिकल पर्पस से सेपरेट नहीं हो पा रहा है। दैट्स वाई क्रिटिक्स से that it shouldn't be on the basic of the parameter, that is physiological need.
ठीक है, ये समझ गया. एज वी मूव फॉरवर्ड, मास्लोस थियरी में मैंने बताया था सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज वी हैव टू मूव फ्रॉम द पिरामिड टू लोअर टू हायर लेवल. तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि ये थियोरी बहुत इनफ्लेक्सिबल है, मीन्स यू हैव टू प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल नीड्स, दैट इज कॉल्ड एज सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, दैट यू हैव टू प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर लेवल नीड्स टू हायर लेवल नीड्स. पर क्रिटिक्स बोलते हैं ऐसा नहीं है, आपकी मल्टीपल नीड्स सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आपके लव एंड कनेक्शन के नीड के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन इंसान को मोटिवेट होने के लिए फिजियोलॉजिकल के साथ साथ लव एंड कनेक्शन नीड्स अगर सेफ्टी नीड्स के साथ पहले चाहिए, तो मल्टीपल नीड्स कैन को एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, मीन्स यू डू नॉट हैव टू फॉलो द हायरार्की टू मेंटेन टू नीड्स एट द सेम टाइम. अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं. एक फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है जिसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो सेक्रीफाइस कर सकता है ऑन टू सम एक्सटेंट, बिकॉज उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे फोकस करना है, बिकॉज ही वॉन्ट टू क्रिएट आर्ट फॉर हिज पर्सनल ग्रोथ, एंड ही थिंक्स कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी में फॉलो एट अ लेटर स्टेज. तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली नीड्स फुलफिल हो सकती है, मीन्स उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ अगर सेफ्टी नीड्स बहुत कम क्वांटिटी में या कम रिलायबिलिटी में भी हो तो भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ मूव ऑन हो सकता है. सेम अप्लाइज विथ मॉन्क एज वेल. हम देख सकते हैं कि मॉन्क अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे ज़्यादा फोकस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी नीड्स. तो वो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि मल्टीपल नीड्स एक साथ को एग्जिस्ट हो सकती है. अभी थर्ड क्रिटिसिज्म ये है रिजिडिटी को लेके या हायरार्की को लेके कि ऑर्डर इज़ नॉट यूनिवर्सल. हमने यहाँ पे देखा कि पिरामिड के 5 मॉडल्स लोअर टू हायर है एंड इट हैव अ सर्टेन क्राइटेरिया, मीन्स फिजियोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट आएगी तो फर्स्ट ही होगी, उसको आप सेकंड स्टेज पे नहीं रख सकते. तो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि ऑर्डर्स नीड नॉट टू बी फिक्स्ड. ये ऑर्डर फिक्स होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कल्चर होता है. देखो, इंडिविजुअल कल्चर होता है एंड कलेक्टिविस्ट. जैसे एशियन फैमिली में कलेक्टिविस्ट कल्चर है, हम सोसाइटी के बारे में पहले सोचते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल नीड्स के बारे में. तो कल्चर और इंडिविजुअल इस चीज़ को मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आपके लिए एस्टीम और बिलोंगिंग से ज़्यादा सेफ्टी की नीड्स अगर ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल एस्टीम और बिलोंगिंगनेस मीट माइट प्रेसिडेंस ओवर सेफ्टी. तो अगर पॉलिटिकल प्रिजनर को हंगर स्ट्राइक पे भेजा गया है तो उसके लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक हंगर स्ट्राइक पे है. उसके लिए हायर नीड्स इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट इज़ लोगों के लिए प्रोटेस्ट करना या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्डर इज़ नॉट यूनिवर्सल, हम कोई भी ऑर्डर में मूव कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द हायर क्रिटिसिज्म दैट मास्लोज थ्योरी हैज़ बीन फेस्ड. As we move forward, as I have given example about cultural bias, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी एंड कलेक्टिविक कल्चर में नीड्स बहुत डिफरेंट है. लाइक इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जहाँ कलेक्टिविस्ट कल्चर चलता है, हमें सोशल नीड, सेफ्टी नीड, कम्युनिटी एंड लव इन बिलोंगिंगनेस की नीड को हम बहुत टॉप प्रायोरिटी देते हैं. वेरेस्ट इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में वो लोग खुद के ग्रोथ को और स्टीम को और रिकग्नाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं. हम शायद ये उससे पहले बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड कम्युनिकेशन नीड्स एंड सोसाइटल नीड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. तो ये जो मास्लोज थ्योरी है कलेक्टिविस्ट कल्चर में बहुत डिफरेंटली वर्क करेगी और इंडिविजुअलिस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंटली वर्क करेगी. तो डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एज वी हैव टोल्ड यू, कि फुलफिलिंग वन पोटेंशियल इज कल्चरली डिफाइंड एंड वेरीज ड्रामेटिकली अराउंड द वर्ल्ड. तो एज वी कैन से कि इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल है वो हर जगह पे, हर कल्चर में बहुत डिफरेंट होगा. तो फुलफिलिंग one's potential and achieving the self actualization may be different for a societal or socialist culture and collectivist culture as well as individualistic culture. I hope you understand this. अभी तो हमने देख लिया कि मोटिवेशन के फैक्टर्स क्या है पिरामिड में, कौन से 5 लेवल्स है. तो हम थ्योरी का एक और मेजर क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत अदर जो इंपॉर्टेंट मोटिवेटर्स हैं उनको निगलेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, ये नेगेटिव मोटिवेटर्स है, ठीक है, फियर, अवॉइडेंस ऑफ पेन, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स ऑफ बिहेवियर. हमने बोला था कि सेफ्टी नीड्स पे आप जब तक अच्छे से अगर आप सेटल नहीं हुए तो आप हायर नीड पे फुलफिल नहीं कर सकते. ये मे बी नेगेटिव मोटिवेटर्स के केस में गलत है. अगर आपको डर लग रहा है कि आप सेफ़र नहीं है, आपको कल जॉब से निकाला जा सकता है, मे बी आप अपनी सेल्फ इस्टीम और एक्चुअलाइजेशन नीड पे फोकस करेंगे. और वो उसके पीछे मोटिवेटर्स क्या होंगे, आपका फियर एक मोटिवेटर्स होगा. या फिर अगर डिफरेंट सिनेरियोज़ में अगर आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको कोई काम का ऑब्लिगेशन है और आपकी सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही है, बट वो ऑब्लिगेशन आपको फुलफ़िल करना है जस्ट बिकॉज आपके लिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फुलफ़िल करनी है, तो आप हायर लेवल दैट इज एस्टीम नीड पे फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू सेफ्टी नीड्स.
या लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड, या फिर आप लोगों के साथ घूमने फिरने नहीं जाएंगे, या आप ऑफिस पार्टीज अटेंड नहीं करेंगे, आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे. दीज आर ऑल व्हाट नेगेटिव मोटिवेटर्स. एंड ये नेगेटिव मोटिवेटर्स जो आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स फॉर मोटिवेशन, ये थ्योरी कवर नहीं करती है. मास्लोस थ्योरी डू नॉट कैप्चर इन दैट हायरार्की कि फियर की वजह से भी मोटिवेशन आ सकता है या हम हायर स्टेज ऑफ मोटिवेशन पे मूव इन कर सकते हैं. फियर ऑफ फेलियर एंड एवरीथिंग. अभी हमने मास्लो हायरार्की का सबसे टॉप स्टेज देखा था, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट. तो अभी ये जो अदर मोटिवेटर्स निगलेक्ट करते हैं वो है अल्ट्रुइज्म एंड ट्रांसेंडेंस. व्हाट इज़ अल्ट्रुइज्म? बेसिकली कि आप अपने बारे में छोड़ के सोचना, दूसरों की नीड्स के बारे में, दूसरों को हेल्प करने के बारे में, दूसरों को उनकी पोटेंशियल दिखाने के बारे में, मीन्स हेल्पिंग अदर्स एंड सेल्फलेस सर्विसेज. ये मास्लोज में कवर नहीं किया था 5 पिरामिड मॉडल का, जो कि लेटर ऑन मास्लोज के एक्सटेंडेड थ्योरी में एड ऑन किया गया है. तो बेसिकली ये दिस वाज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म कि आप स्पिरिचुअल नीड्स के एक इंसान के फोकस नहीं कर रहे. जैसे मैंने मॉन्क बताया आपको, मॉन्क इज़ वन ऑफ दिस कैटेगरी जो अल्ट्रुइज्म एंड ट्रांसेंडेंस पे, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स या फिर एस्टीम नीड्स पूरी हो रही है. वो सोसाइटी के गुड के लिए काम कर रहा है. ही हैज़ अटेंड दैट स्पिरिचुअलिटी कि उसको बाकी के पिरामिड्स की नीड्स की एज सच ज़्यादा नीड्स नहीं है. इफ़ बेसिक नीड्स आर फुलफिल, ही इज़ ओके विद दैट. ओके. एंड द फिफ्थ क्रिटिसिज्म इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट. ओके, एज वी नो, हमने देखा है कि लोअर लेवल नीड्स से हायर लेवल नीड्स जाने को ये नीड्स फुलफिल करना ज़रूरी है. बट ये नीड्स कितने क्वांटिटी और क्वालिटी में फुलफिल होगी, दैट इज़ नॉट गिवन और अंडरस्टैंड इन मास्लोस थियरी. कि अब कितना ज़रूरी है, सेफ्टी कितनी ज़रूरी है आपके लिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स आपके पास कितनी, अगर आपको दोनों टाइम के लिए खाना मिल रहा है तो क्या आप हायर नीड्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो कितने क्वांटिटी में आपका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, या सेफ्टी नीड्स कितनी आपको चाहिए, या आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी नीड्स आपकी कितनी चाहिए ताकि आप रियल ह्यूमन कनेक्शन की तरफ मूव ऑन कर सके. तो दिस इज़ एम्बिग, इसमें क्लियरिटी और विजन नहीं है. तो नो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स हैव बीन गिवन इन मास्लोस थ्योरी. तो वी कैन सी this theory provides no objective measures for what constitutes satisfaction. Means 50% satisfaction of safety needs is it enough to move towards pursuing love and belongingness needs. तो हमें नहीं पता कि कितने क्वांटिटी में वो नीड फुलफिल होना चाहिए ताकि हम मास्लोस हायरार्की के आगे के स्टेज पे पहुंच सकें. तो दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म. और मास्लोज ने मोटिवेशन थ्योरी को बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, ऐसे क्रिटिक्स बोलते हैं कि एक सिंपल लीनियर पाथ दे दिया है. बट मोटिवेशन सब इंडिविजुअल के लिए अलग वर्क कर सकता है. शायद जो चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है एक डॉक्टर बनने के लिए, एक IAS ऑफिसर बनने के लिए, वो किसी और इंसान के लिए डिफरेंट फैक्टर होगा. मे बी फाइनेंशियल फैक्टर होगा, आपके लिए सेल्फ स्टीम फैक्टर होगा. तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स and it is rarely simple and a linear path, but Maslow has given a very simple and linear path that human motivation works in these stages. तो ये heavily criticized criticism है, that is oversimplification of human motivation. So motivation can fluctuate dramatically based on situation, context, a threat to safety and instantly override all higher level needs. अब war की situation में जहाँ सेफ्टी नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पा रही है तो ह्यूमन आगे की नीड्स के ऊपर फुलफिल करेगा नहीं. कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, कोई जॉब लॉस हो गया, सपोज ले ऑफ हो गए कंपनीज़ में, आपको जॉब से निकाल दिया गया, तो ह्यूमन मोटिवेशन इस चीज़ में काम नहीं करता है. अगर आप बोलेंगे कि सेफ्टी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है और वो बाकी की चीज़ें नहीं कर सकता, नो, ही विल बी इन फियर एंड ही विल बी हैविंग नेगेटिव मोटिवेशन. ही विल वर्क हार्डर टुवर्ड्स गेटिंग अनदर जॉब फॉर हिज सेफ्टी नीड्स, राइट. द थियरी डजंट adequately account for regression. An individual who has reached self-actualization can be forced back to focusing on safety needs after a traumatic event or a job loss. अगर कोई इंसान सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे पहुंच चुका है और अचानक से उसका जॉब चला जाता है तो उसको अपने वापस सेफ्टी नीड्स की तरफ आना पड़ेगा फुलफिल करने के लिए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी. तो ये ह्यूमन बिहेवियर पे फेस कर सकता है, सिचुएशन पे फेस कर सकता है, ट्रॉमेटिक इवेंट पे फेस कर सकता है. तो ओवर इन सिंप्लीफिकेशन हुआ है मास्लोज की थ्योरी में अबाउट ह्यूमन मोटिवेशन. और वन ऑफ द ग्रेट क्रिटिसिज्म इज़ कि ये थियोरी साइंटिफिक नहीं है, ये ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे और एविडेंस पे बेस्ड नहीं है. दिस डज नॉट हैव रिजरस डाटा टू सपोर्ट कि मोटिवेशन इसी फॉर्म में हर इंडिविजुअल के लिए वर्क करेगा. तो ऑब्जर्वेशन बहुत लिमिटेड पीपल पे किया गया है, बहुत लिमिटेड स्टडी है, दैट वाई इट फेस मेजर क्रिटिसिज्म ऑन दिस पॉइंट एज वेल. After studying about criticism for Maslow's theory, we're going to study Maslow's extended theory of motivation. तो what is thus Maslow's extended theory of motivation says कि Maslow's theory जो basic hierarchy of needs पे focus करती है, that is the fundamental theory in physiology
एंड ओरिजिनली प्रपोज इन 1943 पेपर। तो इसको एक्सटेंड किया गया, ये जो 5 टायर पिरामिड्स थे इसको 8 टायर पिरामिड्स थ्योरी बनाई गई, दैट इज़ 8 स्टेजेस पिरामिड थ्योरी। ठीक है, तो व्हाट आर दिस 3 स्टेजेस दैट हैज़ बिन एडेड टू दिस 5 स्टेज। तो हम लोग ये 5 स्टेजेस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैट इज़ बेसिक सर्वाइवल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, दैट इज स्टेबल सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम फियर एवरीथिंग, लविंग बिलोंगिंगनेस नीड्स, दैट इज कनेक्शन, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, देन esteem needs, self esteem, respect from other achievement, and actualization need, realizing full potential and self fulfillment। इसके अलावा जो 3 नीड्स ऐड की गई है एक्सटेंडेड थियरी में, दीज आर कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स एंड सेल्फ ट्रांसेंडेंस नीड्स। तो व्हाट आर कॉग्निटिव नीड्स? ठीक है, तो बेसिकली आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉग्निटिव नीड्स हैज़ बीन cognitive needs has been placed after esteem needs. What are cognitive needs? That is exploration, learning something, curiosity। तो ये पहले पिरामिड में प्लेस नहीं थी, बट अगर आप इमेजिन करें कि आपकी एस्टीम नीड्स के बाद अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप क्यूरियस है किसी चीज़ के बारे में, आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ को लेके मोटिवेटेड हैं तो आप ज़्यादा काम करेंगे। तो कॉग्निटिव नीड्स ऑल्सो प्ले अ मेजर पार्ट इन मोटिवेटिंग समथिंग or someone। Suppose you are a scientist, you are working on a project and you want to explore more, you have to gain knowledge for that, understanding, आपकी curiosity build up होती जाएगी, तो ये आपको मोटिवेट कर सकती है आपके काम में मूव फॉरवर्ड करने के लिए, इवन बिफोर द एक्चुअलाइजेशन नीड और सेल्फ ट्रांजिशन नीड्स अकर। तो दिस इज वन ऑफ द नीड्स, दैट इज कॉग्निटिव नीड्स। दैट मीन्स यू हैव टू गेन, you want to gain knowledge, you want to gain understanding about certain topic, you are very curious about learning new things, you want to explore various sides of your passion and everything। Then comes the aesthetic needs। What are aesthetic needs? Means beauty needs, that you want to look good, you want to be in good shape, you are desire कि आपको घर को बहुत अच्छे डेकोरेट करना है, आपको आपका स्टडी रूम अच्छा रखना है, तभी आप पढ़ाई के लिए मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो these are all what are called as aesthetic needs। ठीक है, some extended hierarchies includes aesthetic needs as separate level between cognitive and self actualization। अभी अब cognitive और self actualization के बीच में इसको क्यों प्लेस किया गया है, this I don't know, एंड इट हैज़ बिन नॉट बीन प्रॉपरली प्लेस्ड इन द पिरामिड, बट मास्लोज बोलते हैं कि एस्थेटिक नीड्स को आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और कॉग्निटिव नीड्स के सेपरेट लेवल पे प्लेस करेंगे। एंड अब एज आई टू अप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी, की अगर कोई चीज़ बहुत सुंदर है, आपको बहुत एडमायर कर रही है, तो आप उसके लिए मोटिवेट होंगे वो करने के लिए, अचीव करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी पर्सनल नीड्स, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग अ पर्सन। Then comes the higher need, that is self actualization के ऊपर की needs, that is self transcendence, that is spirituality I talked about, and altruism, that is selfless service। Because you just imagine you are running an NGO and you have a very higher need for helping people around you, that you don't care about other needs, or your other needs are being fulfilled barely, or are very fulfilled, then you will be focusing on self transcendence needs, helping other to self actualize, connecting to other beyond the ego, means spiritually connect करना, उनकी ग्रोथ में उनको फुल पोटेंशियल पे हेल्प करना। दिस इज व्हाट कम्स एट अ वेरी हायर नीड। बेसिकली मैंने आपको बाबा का सिंबल दिया है यहाँ पे, आप स्पिरिचुअली बहुत हायर लेवल पे ग्रो हो चुके हैं, आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, आप सेल्फलेस हो चुके हैं, आप सेल्फिश नहीं रहे, आप रिकग्निशन के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। दिस इज द हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मास्लोज एक्सटेंडेड थ्योरी। सी दिस 8 पिरामिड। तो मैंने बताया था डेफिशिएंसी नीड्स। ओके, डेफिशिएंसी नीड्स मैंने आपको 4 नीड्स बताए थे, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग एज, लव नीड्स एंड एस्टीम नीड्स। बिकॉज यू आर डेफिशिएंट इन दीज नीड्स, तो ये डेफिशिएंसी नीड आपको ड्राइव कर रही है। एंड द अदर 4 दैट हैव बीन एडेड, दिस 3 and 1 एक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज ग्रोथ नीड्स। तो ये आपको ग्रोथ की तरफ फुल कर सकती है, ये आपकी नीड्स ग्रोथ के लिए है, आप डेफिशिएंट है किसी चीज़ में उस वजह से नहीं है। तो दिस आर कॉल्ड एज ग्रोथ नीड्स, दैट इज बी नीड्स, and deficiency needs, that is D needs। okay, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि what are the deficiency needs and what are the growth needs, which of the following is not deficiency needs or growth needs। so here it is given कि कॉन्सेप्ट इन एक्सटेंडेड थ्योरी, तब जो ग्रोथ और डेफिशिएंसी नीड्स के बारे में हमने बात की। डी नीड्स इज फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड स्टीम। दे अराइव फ्रॉम डिप्रिवेशन एंड मोटिवेट बिहेवियर व्हेन अनमेड। बिकॉज आप डिप्राइव है, आप सेफ्टी से डिप्राइव्ड है, आप फिजियोलॉजिकल फूड से डिप्राइव है, आप बिलोंगिंगनेस से डिप्राइव है, आप रिकग्निशन से डिप्राइव है, तो ये डिप्रिवेशन की वजह से मोटिवेट करती है ह्यूमन के बिहेवियर को, जब ये फुलफिल नहीं होती। एज यू नो, आपको फूड नहीं मिलेगा तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड अराइव हो रही है, आप डिप्राइव हो गए हैं फूड से, तो आप उसको फुलफिल करने के लिए व्हाट डेफिशिएंसी नीड फुलफिल करने के लिए आप मोटिवेट होंगे। दीस आर व्हाट कॉल्ड एज डेफिशिएंसी नीड्स। देन ग्रोथ नीड्स, दैट इज बी नीड्स,
दैट इज एज वी टॉक्ड अबाउट कॉग्निटिव नीड्स, जैसे आपको खुद चीज़ें सीखनी है, आप अंडरस्टैंड करना, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप एस्थेटिकली प्लीजिंग रहना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एस्थेटिक नीड्स कि आपको कोई आर्ट क्रिएट करना है, आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं बिकॉज यू वांट टू लुक इट वेरी ब्यूटीफुल, यू वांट टू स्टे फिट, etc. Self-actualization and self-transcendent needs, this is working for your own growth at a higher level, at a higher potential, that is challenging work. And self-transition means working for others selflessly, that is spirituality. These are driven by the desire for personal growth rather than lack. These growth are what you are deprived of this thing, that why you are motivated, that is deficiency needs. And you are deprived of growth rather than lack, then your this needs are called as growth needs, means आप अपने growth के personal development पे काम कर रहे हैं। तो वही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। सेल्फ ट्रांसेंडेंस नीड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इट्स फोकसेस ऑन स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस, हेल्पिंग अदर अचीव द पोटेंशियल, एज आई हैव टोल्ड यू। नॉट एवरीवन रीचेस दिस स्टेज। हमको पता है कि सब लोग इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट रिक्वायर्स फुलफिलमेंट ऑल लेवल नीड्स। मॉन्क बनना डिफिकल्ट है अगर आपके पास खाना नहीं है, आपका शेल्टर नहीं है, आपकी फैमिली डिप्राइव्ड है, आपको रिकग्निशन नहीं है, तो सब लोग इस स्टेज पे पहुंच नहीं पाते हैं। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको लोअर लेवल नीड्स को फुलफिल करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Then comes non-linear and dynamic nature. Maslow's acknowledged that the hierarchy is not rigid. Individual में prioritize needs differently based on context. तो अभी यहाँ पे हमने extended theory में क्या पढ़ा है कि नॉन लीनियर और डायनामिक नेचर कर दिया गया है थ्योरी का, क्योंकि उसको रियलाइज़ हुआ है कि इंडिविजुअल प्रायोरिटी नीड्स डिफरेंट हो सकती है। प्रोग्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज सिक्वेंशियल। अगर आपके लिए सेफ्टी नीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए लव एंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मे बी आप फिजियोलॉजिकल नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स। बट अगर आपके लिए सेफ्टी नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और लव एंड रिलेशनशिप या सेल्फ स्टीम नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके ऊपर काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू सेफ्टी नीड्स। मे बी आप कम सैलरी पे काम कर लेंगे, या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, या आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, फिर भी आप अच्छे से काम करेंगे बिकॉज आपके लिए हायर नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन इज नॉट ऑलवेज सीक्वेंशियल, मे बी इट विल फॉलो लेटर ऑन, बट अभी आप जो काम कर रहे हैं वो आप अपनी सेफ्टी नीड्स पे नहीं, लव एंड बिलोंगिंगनेस के नीड पे या स्टीम नीड्स पे काम कर रहे हैं। सम नीड्स में भी परस्यूड साइमल्टेनियसली, या फिर आप बोथ नीड्स को साइमल्टेनियसली भी परस्यू कर सकते हैं, ओके। तो इसकी क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो वी आर स्टडिंग क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सटेंडेड थ्योरी। तो पहले तो एम्पेरिकल एविडेंस, लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस है। हमने बोला कि दिस थ्योरी इज लार्जली कंसेप्चुअल और ये टेस्टेबल नहीं है। इजीली आप किसी ह्यूमन बिहेवियर पे इसको टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी थियोरेटिकल। कल्चरल बायस, द एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म मे नॉट अप्लाई यूनिवर्सली। जैसे मैंने आपको बताया था, कलेक्टिविस्ट अगर कल्चर जैसे एशियन कल्चर्स है या इंडिविजुअलिज्म कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर्स है, उसमें ये थ्योरी डिफरेंटली वर्क कर सकती है अप्लाइंग ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो कल्चरल बायस इज ऑल्सो देयर। ओवरलैप है, नीड्स ऑफन ओवरलैप, हो सकता है कि आपके लिए जो नीड्स है वो ओवरलैप कर रही हो, सेफ्टी के साथ आपको स्टीम नीड्स भी और ग्रोथ नीड भी चाहिए हो, तो आपकी नीड्स ओवरलैप कर सकती है। या फिर आपको नॉलेज भी एक साथ में गेन करना, आप क्यूरियस भी हो, एवरीथिंग, तो नीड्स कैन बी ओवरलैप। तो ओवरलैप और फ्लेक्सिबिलिटी का इशू अभी भी क्रिटिसिज्म में है। तो मॉडर्न एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि ये थ्योरी की मॉडर्न एप्लीकेशन क्या होगी, वर्क प्लेस मोटिवेशन। तो ये थ्योरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फिर रिवॉर्ड सिस्टम को या फॉस्टर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में टीचर्स ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स की फंडामेंटल नीड्स और लर्निंग को एनहांस करने के लिए, एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कि गाइड्स इंटरवेंशन एम्ड एट फुलफिलिंग अनमेट नीड्स टू प्रमोट मेंटल वेलबींग। तो मेंटल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए थेरेपी और पर्सनल डेवलपमेंट्स के लिए भी ये नीड्स यूज़ हो सकता है। तो दिस आर मॉडर्न इम्प्लीकेशन। Now we have concluded the Maslow's theory. Conclusion पढ़ लेते हैं। Maslow's extended theory offers a comprehensive framework for understanding human motivation, emphasizing not only on basic survival but also higher aspiration like knowledge, beauty, and self-transcendence. While it has limitation, its influence persists in psychology, management, education, and beyond. तो हमने देखा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा ह्यूमन मोटिवेशन में, उसका एक क्रक्स दिया हुआ है। ओके, तो मास्लोस थ्योरी पढ़ने के बाद हम एक क्विक नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसमें से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस लूँगी, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपको कितने अच्छे से ये थ्योरी समझ में आई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी रही है, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिफाइंग नीड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिनेरियोज दिए हैं, आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप खुद बताएंगे कि वो किस नीड्स को फुलफिल करता है। तो फर्स्ट वन इज, सी आई एम रीडिंग इट, अ टीम ऑफ एक्सप्लोरर इज लॉस्ट इन आर्टिक, देयर फूड सप्लाईज आर रनिंग लो and blizzard is approaching. Their primary focus is finding shelter and any source of calories. Which level of need is dominating this behavior? तो आप ये क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वो एक्सप्लोरर्स है, वो आर्टिक में खो चुके हैं,
ठीक है, उनके पास फूड सप्लाई नहीं है, फूड सप्लाई उनका बहुत कम है, उनको लग रहा है कि स्ट्रॉम आ सकता है, ठीक है, और उनके पास उनका प्राइमरी फोकस है अभी शेल्टर ढूंढना ताकि वो अपने आप को सेव कर सके, और कैलोरीज भी ज़रूरी है बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन सच लो टेम्परेचर, तो उनका फूड भी एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो हमने देखा कि 5 पैरामीटर्स नीड्स पे अपन ने जो पढ़ा था फिजियोलॉजिकल, देन फर्स्ट वी हैव स्टडीड फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। तो इस बेसिस में हम बता सकते हैं कि फूड की स्कैर्सिटी है, डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, फूड की है, शेल्टर की है, ठीक है। तो विच नीड इज़ इन डेफिशिएंट, फूड एंड सेफ्टी नीड्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेफ्टी नीड्स कम्स लेटर ऑन। अगर आप बोल रहे हो कि शेल्टर नहीं है, सेफ नहीं है, नो नो नो, सेफ्टी नीड्स यहाँ पे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मिसिंग। तो व्हाट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। द आंसर इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। आफ्टर अ मेजर अर्थक्वेक सिटी वाटर सप्लाई इज कंटामिनेटेड, द गवर्नमेंट इमीडिएट प्रायोरिटी इज टू डिस्ट्रीब्यूट बॉटल्ड वाटर एंड प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स। तो बेसिकली अर्थक्वेक के बाद वाटर कंटामिनेट हो चुका है, गवर्नमेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ और प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स देने की तरफ काम कर रही है। तो दिस रिस्पॉन्स इज प्राइमरली एड्रेसिंग विच नीड, ये आपको क्या लगता है किस नीड से बिलोंग करता है? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, दिस इज व्हाट फिजियोलॉजिकल नीड, बिकॉज वाटर, थर्स्ट, हंगर, दिस आर ऑल व्हाट फिजियोलॉजिकल नीड्स जो आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, ओके। Now we'll be studying one last example for need-based theory. That is, an employee is anxious due to rumors of massive layoffs. They have started aggressively saving money and adapting their resume. तो मैंने बताया था कि मेजर layoff, जैसे अभी TCS में एक मेजर layoff हुआ है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। तो रूमर्स जब फैले थे तो एम्प्लॉयज़ ऑब्वियसली एंक्शियस हो गए, वो मनी सेव करना चाहते हैं ताकि वो 6 मंथ्स अगर जॉब नहीं भी रहे तो भी सर्वाइव कर सके, या फिर रेज्यूमे अपडेट कर रहे हैं या दूसरे जगह इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ विच नीड हैज़ बिकम द मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न? इन इंडिविजुअल में सबसे प्रेसिंग कंसर्न वाली नीड्स कौन सी है? दैट इज सेफ्टी नीड्स, बिकॉज द सेफ्टी हैज़ बिन हैम्पर्ड। मे बी उनके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स अभी तो जॉब से फुलफिल हो रही होगी, बट यहाँ पे सेफ्टी नीड्स डिप्राइव हो रही है, या वो एंक्शियस है कि ये सेफ्टी नीड्स डेप्रिवेशन कैटेगरी में चल जाएगी। तो विच नीड हैज़ बिन यर एम्फोसाइज्ड, दैट इज सेफ्टी नीड्स। तो उनको क्या मोटिवेट करेगा नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए या काम करने के लिए या मूव फॉरवर्ड करने के लिए? दैट सेफ्टी नीड्स विल मोटिवेट दैम, ओके। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। We are taking one more example. 9th question. A successful lawyer leaves the firm to provide low cost legal aid. ठीक है, तो बेसिकली ही वॉज अर्निंग वेरी गुड, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर, ठीक है। वो अपनी फर्म छोड़ के लो कॉस्ट लीगल एड दे रहा है, मे बी पुअर को या फिर जो नीडी है उनको, फाइंडिंग इट डीपली फुलफिलिंग, और उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अपने ये काम में। तो दिस शिफ्ट ऑफ एग्जाम्पल इज परस्यूइंग ऑफ विच नीड? आपके अकॉर्डिंगली वो किस हायरार्की पे है मास्लोस के? We have studied the 5 pyramid level. Think which need? Safety needs, esteem needs, self actualization need और love and belonging. क्या वो love और belongingness की वजह से लोगों की हेल्प कर रहा है, या उसको खुद को पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं मैं दूसरों की हेल्प करूँगा? तो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. विच नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ओके। अभी हम फंडामेंटल थियोरी, फंडामेंटल्स एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं एक क्वेश्चन में. दिस इज द 11th क्वेश्चन, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द मास्लोस थियोरी, अ नीड दैट इज मोस्टली सेटिस्फाइज, अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं, बिकम्स परमानेंटली एलिमिनेटेड. अगर आपकी कोई एक नीड बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुकी है तब क्या वो परमानेंटली एलिमिनेट हो सकती है? नहीं. मे बी आपको वो नीड की ज़रूरत वापस से आ जाए, वो एलिमिनेट तो नहीं हो सकती, आप हायर चीज़ पे मूव कर सकते हैं, बट दैट नीड स्टिल एग्जिस्ट. बिकम्स अ सोर्स ऑफ पैथोलॉजी इफ नॉट मेट, क्या पैथोलॉजिकल सोर्स है अगर नहीं मिली तो. स्टॉप बीइंग अ प्राइमरी मोटिवेटर्स, हाँ शायद वो प्राइमरी मोटिवेटर ना रहे अभी आपके लिए, ठीक है. मे बी प्राइमरी मोटिवेटर शिफ्ट हो गए, आपके लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंट कोई और नीड हो गई, ठीक है. तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल. स्टॉप बीइंग अ प्राइमरी मोटिवेटर्स, इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म इनटू नेक्स्ट नीड. नो, this is the good option. Stops being the primary motivators. If that need is fulfilled or it's mostly satisfied, you will be not be more motivated to fulfill that need. So it's being stop being the primary motivator for you. ठीक है, तो 12th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. अ पर्सन हु हैज़ जस्ट एस्केप्ड अ वॉर टोन कंट्री विल लाइकली टू बी लीस्ट कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? फाइंडिंग फूड एंड वाटर, सिक्योरिंग अ स्टेबल जॉब, ज्वाइनिंग अ बुक क्लब और यूनाइटिंग विथ फैमिली. आपके अकॉर्डिंगली अगर एक इंसान एस्केप किया है वॉर कंट्री से तो उसके लिए सबसे ज़्यादा लीस्ट कंसर्न वाली चीज़ें कौन सी है? विल लाइकली बी द लीस्ट कंसर्न. उसको फूड और वाटर उसके लिए तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज वो उसने वॉर में वो सिचुएशन देख ली है स्कैरसिटी की. सिक्योरिंग अ स्टेबल जॉब मे बी
Joining a book club is very least concern for him, and reuniting with family is the top priority. Means finding food and water, reuniting with his family is his top concern, and as well as giving security financially is also a good concern, secondary concern. So joining a book club is not one of his concern. So वो option is joining a book club. Okay, moving forward. I hope you are understanding this. 15th question. An individual spends its free time mastering a new language and devouring non-fiction books. ठीक है, बेसिकली अपने वो फ्री टाइम में नए लैंग्वेजेस सीख रहा है, नॉन फिक्शन बुक्स लिख रहा है, एवरीथिंग. तो विच ऑफ द ड्राइव इज ड्राइविंग हिम? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मास्लोज नीड बेस्ड थ्योरी, दिस ड्राइव्स अलाइंस विच later added needed, that is cognitive needs. Means he want to gain more knowledge, he is very curious. ठीक है, these are what cognitive needs. ठीक है. 16th question. An architect is obsessed with creating a building that is perfect blend of form, beauty and harmony. तो एक आर्किटेक्ट को अपनी बिल्डिंग, एक प्रोजेक्ट में वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ताकि वो चाहता है कि वो बिल्डिंग बहुत परफेक्ट, ब्यूटीफुल और हारमनी में रहे. तो वो किस नीड को फुलफिल कर रहा है? सेल्फ एस्टीम नीड्स, उसको रिकग्निशन चाहिए उसकी बिल्डिंग के लिए कि अरे वाह क्या सुंदर बिल्डिंग बनाई है, नहीं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि हाँ मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने चैलेंजिंग काम किया, नहीं. यह कम्स द एस्थेटिक नीड्स. उसको वो चीज़ें एस्थेटिकली प्लीजिंग चाहिए, अपना काम उसको खुद के लिए प्लीजिंग चाहिए. ही वॉन्ट्स टू सी ब्यूटी इन हिज वर्क. तो विच नीड्स इज ऑन हायर प्रायोरिटी ईयर? दैट इज एस्थेटिक नीड. अब कोई बोल सकता है कि यहाँ पे मे बी वो सेल्फ एस्टीम नीड के लिए बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहता है. नो, सेल्फ एस्टीम नीड के लिए नहीं, वो ब्यूटी और एस्थेटिक नीड्स, मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि वाह मैंने क्या चीज़ बनाई है. तो एस्थेटिक नीड्स हैज़ बिन फॉलोड ईयर. ओके, तो रेस्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे. मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ रियल लाइफ वर्स बिल सिनारियो पे, जो कि आ सकते हैं बेसिकली. ओके, द 19th क्वेश्चन. अ कंपनी प्रोवाइड्स अ गुड सैलरी, that is physiological needs have been met, and provides health insurance, that is safety needs have been met, and team environment, that is belonging need is also been met, and an award program, मतलब esteem needs भी वो provide कर रही है. What could they add up to help employee reach the highest level? तो बेसिकली 4 पिरामिड्स के 4 नीड्स तो वो फुलफिल कर रहे हैं. तो ऐसी क्या चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं कि एम्प्लॉय को पुश किया जा सके हाईएस्ट लेवल के लिए? बेटर हेल्थ इंश्योरेंस, नो, ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ बिन गिवन. बेटर हेल्थ इंश्योरेंस वोंट एड अप for employee to get motivated. Opportunities for creating projects and skill mastery, maybe this could be one of the reason. A large office space, no, वो लार्ज ऑफिस, वो जो करंट ऑफिस स्पेस पे वर्क कर रहा है, अगर वहाँ पे उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो दिस कुड नॉट बी मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर टू रीच द हाईएस्ट लेवल. और हायर बोनसेस उसको मोटिवेट करेगा क्या हाईएस्ट लेवल पे रीच करने के लिए? नहीं. हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे अकॉर्डिंग टू मास्लोज थ्योरी क्या पढ़ा था कि उसको चैलेंजिंग वर्क चाहिए, वो अच्छा काम करना चाहता है, खुद की ग्रोथ के लिए काम करना चाहता है. तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एंड स्किल मास्टरी कुड मेक हिम गो एंड रीच द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अंडरस्टैंडेबल? ओके, वी आर डन. नाउ विल रिवाइज मास्लोज थ्योरी. तो हमने मास्लोज थ्योरी के 5 पिरामिड्स देखे. दैट इज़ मास्लोज मैंने याद करने का बताया था. मास्लोज में ASLOW, तो 3 नीड्स यहीं से आप याद कर सकते हैं, बट वो मे बी सेम सीक्वेंस में ना हो, बट यू कैन रिमेंबर. ठीक है, A फॉर एक्चुअलाइजेशन नीड्स, S फॉर सेफ्टी नीड्स, L फॉर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, दैट इज हायर 3 नीड्स. ओके, तो फर्स्ट नीड इन द पिरामिड्स इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. सेकेंड इन द पिरामिड इज, you tell me now, physiological needs, safety needs, love and belongingness needs, self-esteem needs and actualization needs. Okay, क्रिटिसिज्म भी हमने पढ़ लिया है. क्या क्रिटिसिज्म है? सीक्वेंस फॉलो नहीं हो सकता है, सेक्स फिजियोलॉजिकल नीड्स में नहीं आना चाहिए, उसको आप लव एंड कनेक्टेडनेस नीड्स पे फील पुट ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज साइमल्टेनियस नीड्स को एग्जिस्ट कर सकती है. हायरार्की इज़ वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट. मे बी जो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी और इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी के लिए मोटिवेशन मास्लोज का अलग लेवल पे वर्क कर सकता है. दिस आर ऑल वर मेजर क्रिटिसिज्म. ओके, नाउ मास्लोज थ्योरीज इज ओवर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. टुमारो विल बी सेइंग अल्फर्ड्स थ्योरी.